ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر خالد جاوید موجود ہیں. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ واقع ہیں اور ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ مل کے خدا ان کا زندہ کلام سے ہم سب کے ساتھ مل کے شیئر کریں. خدا کے کلام کے لیے زوردار تھا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں اس سارے قیمتی موقع کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا تاکہ اسے ہم سجدہ کر سکے، تاکہ ہم اس کی ستائش کر سکیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو، آج ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خداوند میں بڑھتے جائیں اور قائم ہوتے جائیں. اور اسی طرح آج ہم خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں دیکھیں گے اپنی بہتری کے لیے کہ جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے آج. ہاللویا ہاللویا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے صلیب. کیا ہے جی؟ صلیب کے بارے میں ہم دیکھیں گے. صلیب کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاکہ ہم صلیب کے اس ٹاپک کو سمجھ سکیں، کیونکہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک صلیب اور خون کی تعلیم پائی جاتی. کس کی جی؟ صلیب اور خون کی. کیونکہ اسی لیے اس میں ہمیں برکت ملتی ہے خدا کے کلام میں. اسی طرح میرے عزیزو، خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں اسی بات پہ ہی بتاتا ہے کہ صلیب جو تھی، یعنی دار، سولی، یہ الفاظ اس کے لیے تھے. اور اردو میں یہ تمام لفظ اس لکڑی کے استعمال ہوتے تھے، یعنی لکڑی کے لیے جس میں مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا. کنہیں جی؟ مجرموں کو لٹکا دیا جاتا تھا. اور پرانے عہد نامے میں جو ہے کہ استعمال ہوا، اور اس میں لفظ صلیب نہیں ملتا. میں پرانے عہد میں لفظ صلیب نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے جی؟ سولی. اس میں ہمیں لفظ سولی نظر ملتا ہے، اور بلکہ سولی اور درخت اسے کہا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں، شریعت میں، وہاں سے یہ ہمیں نظر آتا ہے. وہاں پہ درخت اس کو کہا گیا ہے. اور صرف جو ہے سولی لفظ وہ آستر کی کتاب میں لکھا ہے. کہاں پہ جی؟ آستر کی کتاب میں ہے. اور جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں، 5واں باب آستر، اور اس کا ہم دیکھیں گے 14ویں آیت کو. جی 14ویں آیت سے اگر کسی کو مل گیا تو پڑھیں. تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کی کر کہ مردکائی اس پر چڑھایا جائے. تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا. یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی. آمین. یہاں پہ ہمیں لفظ جہاں پہ سولی ملتا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ حامان کو وہاں پہ کیا کیا جائے جی؟ وہاں پہ مردگی کو، حامان یہ چاہتا تھا کہ مردگی کو وہاں پہ کیا دیا جائے؟ سولی دی جائے. تو اس نے بنوائی، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، بنائی. اور اسی طرح 6 باب کی 14 آیت میں بھی آگے اس کے سولی کا ذکر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اور اس کا 21 باب اور اس کی
22 और 23 आयत में खुदा के कलाम में यहाँ पे क्या लिखा है, 21वां बाब उसकी 22 और 23 आयत। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो तो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे और तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी न रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाउन है। तो ना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। हालेलुया। यहाँ पे हमें बात नजर आती है कि लकड़ी के बारे में, यानी जब वो अगर कोई मरता था तो उसे वहाँ पे जब उसका जुर्म होता था तो उसे इबरत के तौर पे, किसके तौर पे जी, मारकर उसे इबरत के तौर पे दरख्त पे टांगा जाता था। तो इसी तरह यशवा 10 बाब में और 36 आयत में भी इसी तरह ये कि उसने बादशाहों को वहाँ पे वो किया, वहाँ पे जब उनको मारा और उसको उनकी लाशों को रखा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। हम देखते हैं गलतियों 3 बाब और उसकी 3 आयत में, क्योंकि ये सारी हमें यहाँ से हमें तालीम मिलती है कि हम इन बातों को समझें। हाँ जी, 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। हालेलुया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हालेलुया। अगली आयत भी बेशक पढ़नी। ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है कि मसीह जो हमारी लिए क्या बना जी, लानती बना। वो सलीबी मौत जो थी वो लानती मौत गिनी जाती थी, मुजरमों को वहां पे लटकाया जाता था। वहां पे हमें नजर आता है कि उसने लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। और मेरे अजीजों, वहां पे जो काम किया यीशु मसीह ने वो बहुत बड़ा काम किया था। और इसी तरह यूहन्ना में जब हम देखते हैं यूहन्ना 19 बाब में, तो वहां पे उसका जितना भी शरीयत की पेशन गोइयां थी वहां पे उसने पूरी की। वहां पे सूली पे चढ़ाया गया, वहां पे सूली पे उसको उस पर सियासत की गई, उस पर उसका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वहां पे सूली पे क्या किया जी, लटकाया गया। और इसी तरह मेरे अजीजों, वहां पे कहता है कि रिश्तिशना बताता है कि रात भर उसे वहां पे रखा ना जाए, यानी उस लाश को सलीब पर यानी लकड़ी पर दार पर जब चढ़ाया जाए तो उसे रखा ना जाए, बल्कि उसे उतार के उसी दिन ही क्या किया जाए जी, शाम होने से पहले पहले दफना दिया जाए। तो इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे भी यीशु मसीह को भी हम जब देखते हैं कि वहां पे 3 घंटे यानी पहले ही यानी 3 बजे उसने जब जान दे दी तो उन्होंने दरखास्त की कि इनकी टांगे तोड़ दें इनकी, लेकिन यीशु टांगे इसलिए तोड़ी जाती थी कि ये मर जाए, मारा जाए, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही जान दे दी। यानी यीशु मसीह ने अपनी रूह को खुद बाप के क्या कर दिया जी, हवाले कर दिया। उसने कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी उसने उस पेशन गोई को पूरा करना था जहां पे लिखा था कि उसकी कोई हड्डी भी ना तोड़ी गई। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम पेशन गोइयां को क्या किया है जी, सलीब पर पूरा किया है। सलीब एक सजा, यानी जो सजा पहल जो थी ये शुरू में जब उन्होंने फलनिकियों के जमाना में शुरू हुई, फिर उसके बाद ये कौम में
उस कौम में राज हुई और फिर आखिर में रोमियों ने इसे बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया सलीब को। और इसी तरह रोमी सिर्फ गुलामों और देहाती लोगों को और जो मेरे जो बदतर लोग होते थे, जो बुरे लोग होते थे, उनको मुजरम के तौर पे सूली पे चढ़ाते थे, सजा देते थे। ये शहरी रोमी, ये सजा जो थी रोमी शहरी को नहीं थी दी जाती। जो रोमी शहरी होते थे उनको सलीब पे सजा नहीं थी देते वो। इसी तरह रवायत के मुताबिक मेरे अजीजों, पतरस रसूल जो था उसे सलीब दी गई थी। पतरस रसूल को सलीब दी गई। पौलुस रसूल को सूली पे नहीं चढ़ाया गया इसलिए कि वो रोमी शहरी था, और रोमी शहरी होने के नाते उसका सर कलम किया गया, उसका सर उतारा गया और उसे सलीब पर उसको सलीब पर नहीं लटकाया गया। इसी तरह वो सलीब जो आम तौर पे यानी जो मकूरी के लोगों ने उस वक्त बताई गई, तो वो मेरे अजीजों ख्याल किया जाता है कि यही सलीब जो हम अक्सर घरों में देखते हैं लगी होती है, उसका जो ऊपर से कोना छोटा है और साइडों से बड़ा होता है, और वो उसको सलीब को हम देखते हैं। तो इसी सलीब पर ही हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि उसके सलीब पर एक कुतबा लगाया गया, यानी वो लिख के लगाया गया बादशाहों का बादशाह और राजाओं का, यानी वो बादशाहों का बादशाह यानी तुम्हारा यहूदियों का वो बादशाह है, वो कुतबा उसके ऊपर लगाया गया, यानी ताकि वो जब उनको बताना चाहता था यानी कि यीशु मसीह ही तुम्हारा जो था बादशाह था। इसी तरह वो जो 4 किस्म की सलीब हमें नजर आती, कितने किस्म की जी? 4 किस्म की। एक जो हमें अक्सर हम घरों में देखते हैं सलीब लगी हुई, अक्सर उसके ऊपर से कोना छोटा और साइडों से बड़ा, और वो सलीब है। और दूसरे नंबर पे जो अंग्रेजी लफ्ज टी के मुताबिक है, कैसे जी? टी, अंग्रेजी लफ्ज जो टी होता है उसकी तरह का है। और तीसरे नंबर पर जो है वो एक्स के मुताबिक, जैसे हम देखते हैं जबर, यानी ये जो प्लस का लफ्ज है, अक्सर हॉस्पिटलों में भी वही यूज होती है। अक्सर हॉस्पिटलों में जब लगाते हैं, हॉस्पिटलों में अक्सर हम देखते हैं मोनोग्राम में, तो वो सलीब को लगाया जाता है कि एक तरह वो अपने आप को ये शो करते हैं कि शाफी। और एक और भी आपने वहां पे देखा होगा अक्सर हॉस्पिटलों में कि एक बल्ली के ऊपर सांप भी देखे होंगे आपने, वो उसी को शो करते हैं कि जो मूसा ने बल्ली पर क्या किया था जी? सांप को लटकाया था। वही उस सिंबल को लेके वही आज दिखाते हैं कि जैसे उस वक्त शिफा मिली थी, हम भी उसी तरह लोगों को क्या दे रहे हैं जी? शिफा दे रहे हैं। लेकिन जो चौथे नंबर पर जो थी यानी प्लस वाली जो सलीब है, वो यूनान में राज हुई, वो वाली ज्यादा। उधर सजाएं जब दी गई यूनान में थी, और उसके चारों कोने जो थे बराबर थे। इसी तरह आगे जो दूसरा एक और उसका जो निशान है वो प्लस का है। चौथे नंबर पर क्या है जी? प्लस का, यानी एक्स का यानी एक्स, जैसे अंग्रेजी लफ्ज क्या है जी? एक्स पर भी एक्स का निशान है। और रवायत के मुताबिक इंद्रियास को इसी सलीब पर लटकाया गया। किस पर जी? इंद्रियास को इसी सलीब पर लटकाया गया। पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी उसके वक्त सलीब पर, यानी जो यीशु ने कुर्बानी दी है सलीब पर, वो एक उसको सलीब को क्या समझा जाता था? बहुत मनहूस किस्म का लानती निशान समझा जाता था, बुरा निशान समझा जाता था, जिससे सलीब के लिए सजा होती थी। आज भी कभी किसी को अगर 302 सुनाया जाए तो बहुत परेशान वो भी हो जाता है और उसके घर वाले भी और सारे, कि जिसको क्या मिल गया जी? मौत की सजा मिल गई है, उसको ऑर्डर हो गया जी, 302 लग गई इसके ऊपर। इसी तरह जिससे सलीब का उस वक्त कहा जाता था, उसको हकारत की निगाह से देखा जाता था, उसको कि ये जो सलीब पर इसको जान देनी है, ये तो जो है अपना लानती बंदा है, ये लानत के तौर पे गिना जाएगा यहां पे। इसी तरह मेरे अजीजों, जब खुदावन ये
اس وقت تصور تھا لعنتی کا، مگر جب خداوند یسوع مسیح نے اس پر جان دے دی، اس پر اپنا خون بہا دیا، اس پر اپنی جو قربانی دے دی ہے، اس کے بعد یہ نشان وہ لعنتی نہیں رہا، بلکہ کیا بن گیا ہے؟ پاک بن گیا ہے، وہ پاک علامت گنا گیا ہے۔ کیونکہ صلیب یا لکڑی کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس نشان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر حیثیت صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی ہے اور صلیب کے پیغام کی ہے۔ جو صلیب کا پیغام ہے اس پہ ساری طاقت ہے، اس پہ ساری قدرت ہے، کیونکہ آج میرے عزیزو لوگ صلیب کے پیغام کو کیا کرتے ہیں جی؟ رد کرتے ہیں۔ ایون کے لوگ صلیب کے ساتھ صلیب کو بھی آج برا کہتے ہیں، لیکن پہلے تھا برا، مگر اب جب خداوند یسوع مسیح نے جان دے دی ہے وہ برا نہیں رہا میرے عزیزو۔ اسی طرح صلیب نے مسیح علم الہی میں ایک قدرت پائی ہے، یعنی صلیب میں ایک قدرت نکلتی ہے، صلیب سے ایک قدرت ظاہر ہوئی۔ اس میں کس کی قدرت ظاہر ہوئی؟ خدا کی قدرت یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ جو لعنتی نشان علامت تھا، مگر ہمارے لیے وہ کیا بن گیا ہے جی؟ پاک علامت بن گیا۔ کیا بن گیا جی؟ پاک علامت ہو گیا ہے، پاک بن گیا ہے، پاکیزگی کی علامت ہو گیا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو کبھی ہم بدرو گرفتہ کو یا کبھی شیطان کو آپ صلیب دکھاؤ تو اسے کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ صلیب کی جب آپ بات کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ بدرو گرفتہ کے کیس کو جب کرتے ہیں اس کے ماتھے پہ صلیب بنائے، اس کے بعد دیکھیے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس نشان میں کیا ہے جی؟ قدرت ہے، اس پیغام میں قدرت ہے، اس میں جلال ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم جو پہلی بات ہے اس میں دیکھتے ہیں صلیب میں کہ وہ یہ ہے کہ صلیب خدا اور انسان کے درمیان میں صلح کا کیا ہے جی؟ نشان ہے۔ ایک صلح کا ریلیشن شپ بن گیا ہے انسان کا اور خدا کا بیچ میں۔ جو صلح صلیب تھا، صلیب کی وجہ سے، صلیب پہ جان دینے کی وجہ سے، صلیب پہ قربانی دینے کی وجہ سے انسان کا اور خدا کا کیا بن گیا؟ آپس میں ملاپ ہو گیا ہے اور صلح ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، کلسیوں دیکھیں ذرا، پہلا باب اس کی 20 آیت میں، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہایا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ ہاللویا۔ یہاں پہ کتنی ہم زبردست بات دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ اور اس نے اس کے خون کے وسیلہ سے، یعنی اس کے کیا ہے جی؟ خون کے وسیلہ سے کیا ہو گیا ہے جی؟ صلح ہو گئی۔ یعنی یہاں پہ ہمیں صاف الفاظ میں صاف بتاتا ہے خدا کے کلام میں کہ کہتا ہے کہ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا اور صلح کے سب چیزوں کا اس کے وسیلے سے میل ملاپ ہو گیا۔ یعنی اسی طرح ہم اس بات کو دیکھیں، سمجھیں کہ صلح ہو گئی۔ وہ صلیب جو تھی پہلے لعنتی نشان تھا، مگر جب اس پہ خون بہایا گیا، پاک خون بہایا گیا، تو اس کے وجہ سے اور وہاں کی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا جی؟ وہ صلح ہو گئی۔ اور کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا، یعنی خدا باپ کو یہ پسند آیا کہ اس کے بیٹے مسیح کے خون کے سبب سے وہ کیا کرے جی؟ سب چیزوں میں کیا کر دے؟ مسیح کے وسیلہ سے صلح کر دے، میل ملاپ ہو جائے۔ آج بھی میرے عزیزو، آج بھی جب ہم صلیب کے پیغام کو کوئی قبول کرتا ہے، صلیب کے پیغام کو جب قبول کرتا ہے، پھر ان کی زندگیوں میں قدرت نظر آتی ہے، پھر ان کی زندگیوں میں جلال نظر آتا ہے، پھر ان کی زندگیاں وہ لعنت سے نکل کے زندگی میں آ جاتی ہیں میرے عزیزو۔ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کیونکہ خود انسان کی جو اپنا خفگی تھی خدا کے ساتھ یا ناراضگی جو تھی،
वो गुनाह की थी, गुनाह की वजह से नाराज था खुदा कोई उनके साथ इस बात पे नहीं था कि भी कोई बहुत बड़ा उन्होंने कुछ किया, नहीं, बल्कि गुनाह है जो इंसान को खुदा की हजूरी से क्या रखता है जी, दूर रखता है। यहां पे जो काम हुआ वो यही था कि मेरे अजीजों, वो जात इलाही जो थी उसको पसंद आया कि सारी मामूरी किसमें कर दे, सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे, यस्सु में सुकूनत करे, सब चीजें मसीह की वजह से मेल मिलाप हो जाए। और मेरे अजीजों, हमें इसमें दो मेल नजर आते, इन्हीं चीजों का मेल और शख्सों का मेल, आपस में मेल नजर आता है। और जबकि मेरे अजीजों, दूसरा हम इस बात को देखते कि मसीह पर ईमान लाने से आज भी लोग अगर इस पैगाम को अगर सुनते हैं, सलीब के पैगाम को वो कबूल करते हैं। क्योंकि एक बात कर रहा था खादम, कहता था कि सलीब या लकड़ी पे हम इसकी परस्तिश नहीं कर सकते, यानी हम इसको आगे जाके सजदे नहीं कर सकते, हम इसको लकड़ी परस्ती नहीं कर सकते, बल्कि इस पैगाम को कबूल करके बाबरकत हो सकते हैं। लोग आज भी लोगों को देखते हैं, है पानी में, लोग मेरे अजीजों आज भी लकड़ी परस्तिश, बुत परस्ती, यानी ये सारी चीजों को क्या कर रहे हैं लोग, उसकी आगे जाके झुकते हैं, सरनगूश के आगे हो रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इनकी आगे सरनगू होने से हमें जिंदगी नहीं मिल सकती। जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में है, उसके पैगाम में है, उसके खून के वसीला से है। और मेरे अजीजों, इसी तरह हमें इस बात को समझना है। इसी तरह हम देखेंगे दूसरी बात जो सलीब के पैगाम में हमें दूसरी बात नजर आती है, सुलह और मखलसी में मिलती है। हमारी मखलसी हो चुकी है, हमें आजादी मिल चुकी है, हमारे गुनाहों से हमें नजात मिल चुकी है। और इसी तरह सलीब जो है ये सुलह और मखलसी का निशान बन गया। देखिए जरा कुलसियों में दूसरे बाब में, इसे पहले हमने पढ़ा, दूसरे बाब की 14 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। देखिए 14 बार, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और उसे सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन आमीन। हमने यहाँ पे 14 आयत में देखा है कि उसने क्या किया है जी, हुक्मों की दस्तावेज जो थी, जो हमारे नाम पर लिखी थी, हमारे नाम पर थी, उसे उसने क्या कर दिया है जी, मिटा डाला है, उसको खत्म कर दिया है। और शरीयत के हम कई बार अभी भी लोग देखते हैं कि 10 काम और शरीयत की जो बातें हैं, लोग उससे अभी भी लोग क्या करते हैं जी, मानते हैं। अभी भी शरीयत पर वो कोशिश उनकी होती है कि हम शरीयत को पूरा करके ही शायद नजात पा सकते हैं। लेकिन शरीयत को पूरा किसने कर दिया है, यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, क्योंकि इंसान जो थे वो शरीयत को पूरा कर ही नहीं सकते थे, उस पे पूरा उतर ही नहीं थे सकते। इसीलिए मेरे जीजो, यीशु ने उसके ऊपर जब जान दी, तो मेरे जीजो आज भी हम 10 काम की बात करते हैं, दूसरी शरीयत की और उसकी कुर्बानियों की बात करते हैं। वो सारी की सारी जितनी भी पेशन गोइयां थी, जितनी शरीयत थी, यीशु मसीह ने पूरा करके सलीब पर उसने क्या कहा, तमाम हो गया। क्या हो गया जी, तमाम हुआ, पूरा कर दिया है। अब बनी नो इंसान, तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरे लिए मैंने जान दे दी है, तेरे लिए मैंने अपना खून बहा दिया है, तेरे लिए मैंने
ये सारा बंदोबस्त कर दिया है ताकि तू आज सुरखरू हो सके। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, आज दुनिया कोई सुरखरू है जी? हमें नजर आ रही दुनिया की भाग दौड़, दुनिया भागी फिर रही है, दुनिया मर रही है, दुनिया चीखो पुकार में है। क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह से दूर है, और जो है भी है वो खालिस नीयत से नहीं है उसके साथ। इसी तरह जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को समझें और उस बात को जानें। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज को हटा दिया जो, जैसे मेरे अजीजों किसी कर्जदार कोई अपना कर्ज अदा कर देता है, उसके बाद उसी रसीद को क्या किया जाता है जी? उस रसीद को क्या किया जाता है जी? फाड़ दिया जाता है। उस हम जब किसी को अपना कर्जा दे आते हैं तो उससे क्या लेते हैं? क्लीनेंस लेटर। बैंक में अगर कर्जा लिया जाए तो उससे हम कहते हैं लेटर दो जी हमने कि आपका हमने कर्जा क्लियर कर दिया है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यहां पे कीलों से जड़ दिया। उसे क्या कर दिया? जो हमारे खिलाफ हुक्मों की दस्तावेज लगी थी उसको कीलों से जड़ दिया, खत्म कर दिया, ताकि कोई आपके ऊपर दोबारा ये ना कह सके कि आपने शरीयत की ये बात को अभी तक पूरा नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया और उसने मंसूख कर दिया। सलीब पर मसीह की मौत के वसीला से वो शरीयत जो इंसान को मुजरम ठहराती थी उसको खत्म कर दिया उसने। इसलिए कि मसीह अपनी मौत, उसकी मौत से शरीयत से हमें आजादी मिल चुकी है, गुनाहों से हमें आजादी मिल चुकी है, फजल मिल चुका है। उस फजल में मेरे अजीजों आज हमें बढ़ने की जरूरत है, उस फजल में आज हमें कायम रहने की जरूरत है। और इसी तरह मेरे अजीजों, रस्मी मसीह नहीं बनना, अमली मसीह बनना है। अमली हमारे जिंदगी में काम होना चाहिए, अमली तौर पे हम उसके साथ बढ़ते जाएं। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है, जानना है कि जैसे कि मेरे अजीजों कोई हमें इस बात को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह के गुनाह, उसने हमारी गुनाहों की क्या की है जी? फिक्र की है। खुदा ने फिक्र की है, उसको हमारी फिक्र थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को क्या कर दिया? हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। और हम उसके दुख उठाने से, यानी यीशु के दुख उठाने से, हमारे जो दुख थे उसने ले लिए, हमारी जो मौत थी उसने ले ली, हमने जो हमारी जो मशक्कतें थी, हमने जो उसका दुख उठाना था वो यीशु ने उठाया। इसलिए उठाया कि खुदा को दुनिया से क्या था जी? प्यार था, मोहब्बत थी, उसके साथ रिलेशनशिप था दुनिया का, उससे प्यार करता था, इंसानियत से प्यार करता था। तो इसीलिए मेरे अजीजों, उसने अपने बेटे को क्या कर दिया हमारे लिए? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जो हमारी मरकजी, हम जब उस आयत को देखते हैं, बहुत खास आयत है। इस आयत से मेरी जिंदगी बदली थी, इस आयत से मेरी जिंदगी बदली थी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। इसी आयत से मेरी जिंदगी बदली, मेरे कान में ये सरगोशी होती थी आयत। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात देखते हैं, सलीब खुदा की कुदरत और हिकमत को जाहिर करती है। क्या करती है जी? सलीब कुदरत और हिकमत को। हम देखते हैं पहला करंथियों उसका पहला बाब 18वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनी खास बात है। लकड़ी की कोई अहमियत नहीं है, लकड़ी कोई इतनी ताकत नहीं रखती,
यहाँ हम एक निशान जाहिर करेंगे, सलीब गले में पहन के लोगों को दिखाएंगे। आया कि सलीब के पैगाम को इस दिल में डाल लिया है, सलीब के पैगाम को अपने अंदर ले लिया है, सलीब के पैगाम हमारे अंदर छा गया है। क्योंकि कहता है यहां पे कि क्योंकि लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है जी, बेवकूफी है। वो लोग बेवकूफी समझते हैं सलीब को, उसके पैगाम को बेवकूफी समझते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म है, उनके पास हिकमत है, उनके पास एजुकेटेड है वो लोग। इसीलिए मेरे अजीजों सलीब को क्या समझ रहे हैं जी, उसके कुदरत को कुछ भी नहीं समझते। और यहां पे लिखा है कि जो हलाक हो रहे हैं, जो आज सलीब के पैगाम को और मसीह को कबूल नहीं करते, वो लोग क्या हो रहे हैं जी, हलाक होते जा रहे हैं। आगे पौलुस रसूल कहता है कि हम, क्या कहता है जी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। लेकिन जो हम का लफ्ज इसलिए यूज करता है कि जो उसे कबूल कर लेता है वो कहता है कि हम, कलीसिया कहती थी हम, क्योंकि वो उसका बदन बन चुकी थी, वो उसका बदन हो गई थी। इसलिए मेरे अजीजों उसकी कुदरत सलीब के पैगाम में जाहिर हुई, और सलीब पर मौत का तकाजा जो था वो पूरा किया उसने। उस शर्मनाक मौत को, जिल्लत की, अमेज की मौत को उसने बर्दाश्त किया, हमें नजात दे दी, हमें मखलसी दे दी, हमें नजात मिल चुकी है। हमारे दुख जो हैं उसने सह लिए, हमारी मौत जो थी उसने बर्दाश्त की, क्योंकि वही मौत मेरे अजीजों हमने लेनी थी जो उसने बर्दाश्त की है। आज हमें इस बात को समझना है, सलीब के पैगाम को ले लेना है। सलीब के पैगाम को अपने अंदर ले ले तो आप बरकत पालेंगे, आपकी नस्लें नजात पालेंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप मेरे अजीजों अभी तक सलीब के पैगाम को नहीं समझे तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी बहुत खुदा से दूर है। आज जरूरी है इस बात को समझना, आज जरूरी है इस बात को समझें। आया आप नजात पा चुके हैं, आया आपने नजात मिल चुकी है। आज मेरे अजीजों अपने अंदर, अपने सीनों में खास मेरे अजीजों इस बात को देखें, समझें कि मेरे अजीजों यूनानी लोग जो थे वो हिकमत को बहुत समझते थे, हिकमत को, फिलॉसफी को, बहुत सारी बातों को समझते थे, बहुत उनके पास इल्म था। जैसे आज भी लोग बहुत से इल्म है, बहुत से फिलॉसफी है, बहुत से फिलॉसफर नजर आते हैं, लेकिन फिलॉसफी या इल्म उस वक्त कामयाब होगा जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, सलीब के पैगाम को कबूल करेंगे। अगर नहीं करेंगे वो इसी तरह क्या होंगे जी, हलाक होते जाएंगे। क्योंकि लिखा है कि जो हलाक हो रहे हैं उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को समझना है कि अंजील का पैगाम जो हमें ये दिया जाता है उसका हमें इसमें कायम होने की जरूरत है। मगर नजात पाने वालों के नजदीक क्या है, खुदा की। और इसी तरह मेरे अजीजों सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। वो पैगाम है जिससे हम बरकत पा सकते हैं ईमान ला के। और मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में नई जिंदगी ले आए अपनी जिंदगी को। जब मसीह में आ जाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी जी, नई जिंदगी हो जाएगी और नई जिंदगी आपके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह मेरे अजीजों आपकी जिंदगियों में मौजे रूनुमा होने शुरू हो जाएंगे। जब सलीब का पैगाम आपके अंदर आ जाएगा, सलीब को आप समझ जाएंगे, मसीह के कफारे को समझ जाएंगे, मखलसी को समझ जाएंगे, तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी मौजजाना तौर पे आपकी जिंदगी में मौजे होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों इंसानों में दो ही ग्रुप पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में दो ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से वाले जी? पहला ग्रुप हलाक होने वाले, यहां पे हमने नहीं पढ़ा, यहां पे आयत में पढ़ा है हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है जी, वो बेवकूफी है। दूसरा ग्रुप क्या है, हम जो है कहता है कि पहला ग्रुप जो है हलाक होने वाला है, दूसरा ग्रुप जो है वो नजात पाने वाला है। दुनिया पूरी में दो ग्रुप नजर आते हैं हमें, एक हलाक होने वाले जो हलाक होते जा रहे हैं और जो नजात पाने वाले वो नजात पा रहे हैं। मेरे अजीजों आज जरूरी है इस बात को समझना, इस बात को जानना, क्योंकि मेरे अजीजों जो दुनिया में दो ही ग्रुप हमें नजर आते हैं। इंसान अपनी इंसानी हिकमत पर कुर्बान होते जा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो लोग अपनी हिकमत
अपनी फिलॉसफी, अपने मजहब की तालीम, अपनी हिकमत जो उनके मिली हुई है, उस पर क्या हो रहे हैं जी? हलाक होते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। किस पे? तालीम पे। किस पे कर रहे हैं जी? अपनी हिकमत पे। ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसने मेरे मजहब की नहीं बात सुनी, उसने मेरे मजहब की नहीं सुनी, उसने मेरे फिरके की नहीं सुनी, वो दूसरा फिरका है, वो दूसरा फिरका है। इसी तरह आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं जी? कुर्बान होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इसीलिए हलाक होने वाले दो, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप ये है। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है, आज हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है, उसकी मखलसी को, उसके कलाम को, उसकी सलीब को समझें, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को क्या कर सके जी? जाहिर कर सके। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।